Can we start the Okay, can I have the option of sharing the screen? Yes, please. Making that. लेक्चर था उस पे इनकम टैक्स का ना, वो नहीं आ रही सही आवाज। कौन सा आपने ज्वाइन किया देखा? ये तो वकीलों का है ना ग्रुप, उसमें तो मैंने भी किया बोर्ड पे सर्टिफिकेट भी था। I'm Sayyid Nasir Shad here, and read it to all of you, and making it a base, we will proceed. What is taxation? The only thing that government money from individuals, businesses, and other entities, fund public services and infrastructure. It is a mandatory financial charge imposed by the state, and failure to taxes can lead to legal penalties. Principle of taxation. It's equity, certainty, convenience, economy. Purpose of taxation. Redistribute wealth. To redistribute wealth and reduce inequality. Regulate economy. To stabilize the economy through fiscal policy. Fund public services to raise revenue for government, healthcare, education, and defense. Influence behavior. To influence behavior, for example, taxes on tobacco or carbon emissions.
Classification of tax based on burden distribution. Progressive tax rates rise with income, like income tax. Regressive taxes decrease with income, such as sales tax. Proportional taxes apply the same rate to all, like some corporate sectors, corporate taxes. Progressive taxation, higher income, higher tax rate. Regressive taxation, lower income, pay higher percentage. Proportional taxes, same rate for regression is something where हम वहां पर हमारे टैक्सेस जो हैं वो ज्यादा रिकवर हो रहे होते हैं, इनकम ज्यादा आ रही होती है और टैक्सेस भी रिकवर ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम ज्यादा वॉल्यूमनेस हो जाता है और वॉल्यूमनेस होने की वजह से उस पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आ जाता है और टैक्सेस तो बढ़ते हैं लेकिन एक्सपेंडिचर की वजह से उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कमर्शियल हो जाता है डिपार्टमेंट के लिए. Type of taxes. Taxes, there are both taxes are there. Taxes which are directly recovered or taxes which have been indirectly recovered. Paid directly to the government by individuals or companies. Income tax on earnings. Whatever has been earned, we pay income tax for those earnings. Property tax on ownership. Whatever property is owned by any person is properly and on the basis of the calculation criteria given, it has been changed, it has been enhanced, and measures have been taken to calculate the property on its. Now we come to the corporate tax on business profits. Corporate sector is a very huge and large sector. Here we can have results of so many private limited companies, public limited companies, and on the basis of the profit that they earn, we calculate our tax. So realize that this much is income which is to be taxed. We have a complete audited report with us, prepared by the learned chartered accountants, and that can be a very solid base to calculate the tax. Indirect tax, collected by intermediaries from consumers. Production, excise duty on specific goods. Understanding direct taxation. Direct taxations are paid straight to the government by individual or entity. They are based on the taxpayer, making them progressive in nature. Examples include income tax, property tax, and corporate tax, each impacting personal and business finance. These taxes contribute significantly to government revenue. Income tax, charged on individual and business earning varying by income level. Property tax, levied on real estate or lands ownership common function of services. Corporate tax. As we have already given an explanation about the corporate tax, property tax too, and in fact, these are directly collected taxes. Therefore, it needs to be given more time to understand these taxes. And of course, we have all our collection criteria defined by the tax department itself. And we are doing it on proper channelized manner. Tax filing and payment process. Tax returns. Taxpayers are required to submit their tax returns by deadline, typically September 30th. Tax can be paid online at banks
at banks or authorized tax offices. Timely payments help avoid interest charges, interest charges. Timely payment helps avoid penal interest charges. Tax slabs. Pakistan employs a progressive, I'm sorry, we have a problem here. I have some hindrance on the right side where this, yeah, इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा timely payment helps avoid penalties and interest charges. Tax slabs. Pakistan employs a progressive tax system with rates running from 2% to 35%. Based on income levels, tax rate for individuals. Individual tax rates vary between 5 to 35% depending on their earnings. We have slab rates here, and slab rates is from 600,000 to onward, where we pay 5% tax is more than 600,000 and less than 1.2 million. Likewise, it reaches up to 35% depending on their earning. Tax rate for businesses. The corporate tax rate is generally 29%, with a reduced rate of 25% available for select industries. The industries has a benefit that some provision is created. Okay, selected industries would be given 25% available, 25% of rate, or whatever rate is, it is applied to the selected industries. Tax authorities. The Federal Board of Revenue is responsible for tax administration and enforcement. Now, it is the duty of the tax authorities to administer and enforce the tax recovery. And for this, they are given immense power within their framework to recover tax, and those who do not want to pay the real tax to be imposed on them should be penalized and they must be punished. Then number 7, tax incentives, various exemptions and deductions exist for certain sectors and income types to encourage compliance and growth. Tax incentives. Government is not supposed to only charge to the taxpayers, but they have given incentives to the taxpayers. And those incentives are binding to their payments of tax. If the taxpayer is willing to pay the amount, the government is not going to only take tax from him, but it will give them incentives that if you pay tax, you will be given a reduced rate of tax, or you will be charged or levied tax on the basis or criteria selected by the government itself and the department. Direct tax challenges and reforms. Tax evasion. This is a condition where a person does not want to does not want to pay the tax. It is not only that he is not willing to pay the tax, but if he does it knowingly, then he must be penalized. So this is a challenge for the recovery of direct tax. So for that challenge, we have to bring in reforms. Those reforms would help the departments to recover properly. We have an explanation here. I would like to read it for you. Widespread evasion and avoidance continue to undermine government revenues collection efforts. Many taxpayers underreport income of or conceals assets. Whenever they report for their income, they usually conceal their assets. They hide the actual assets that they have.
but it's a concealment income declared. Therefore, it is the duty of the department to bring changes and reforms to avoid those shortcomings. Making it difficult to collect due taxes and hampering the ability to fund public services adequate. So what they do is they make changes in the system, making it difficult to collect these taxes and hampering the ability to fund public services adequate. Whatever they have been planning and they have been hiding, those should be covered with the effective steps taken by the department. And those are to be taken as initiatives and proper reforms should be brought in. So we are in this. Tax base of individuals and businesses remain outside the formal tax system, reducing the overall tax base. This limits government resources and increases the burden on registered taxpayers, while also limiting economic formalization and transparency. Reforms all right, I am just having a change to explain it in Urdu, and I got your message, inshallah ta'ala, I'm explaining it. Reforms, recent tax reforms in I am starting from ये मैं जो अभी मौजूदा जो टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं उन पे उन जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स लॉज हैं वो इन रिफॉर्म्स के हिसाब से शामिल किए गए हैं. इम्प्रूव्ड यानी डिजिटल फाइलिंग सिस्टम, जो फाइलिंग है उस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और उसके डिजिटलाइजेशन के लिए काम किया जाए. अभी लास्टली टैक्स डिपार्टमेंट्स में डिजिटलाइजेशन हुई है एंड उस डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे लाइमलाइट में आए हैं जिससे काफ़ी फायदा होगा. इट इज़ अ रिफॉर्म दैट इज बीइंग ब्रॉट इन एंड हम अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं और अपने जो इनकम टैक्स के लोग हैं उनको आसानी से ये चीज़ें बता सकेंगे कि आपकी एक्चुअल पोजीशन ये है, इस पर आपने टैक्स पे करना है और ये रिफॉर्म हमने इसलिए लाया है कि आपको समझने में आसानी हो. और these measures aim to increase taxpayer compliance, simplify the taxation process. First of all, we'll see कि ये जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं इनकी कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही है, और simplify the taxation process. And those reforms are to be यानी इस तरह से शामिल किए जाएं कि टैक्सेशन सिंप्लीफाई द टैक्सेशन प्रोसेस. वो टैक्सेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एंड ब्रॉडन द टैक्स बेस फॉर सस्टेनेबल रेवेन्यू. तो ये कहते हैं कि ये जो सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ है, बाय ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस फॉर सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ, के जो हमारा रेवेन्यू है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ, उसके लिए हम टैक्स बेस को ब्रॉडन कर देंगे. अब हम ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझना पाकिस्तान में किस तरह फायदेमंद होगा या उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें. उसके लिए हम चार चीजों को देखते हैं. नंबर वन इज सेल्स टैक्स, अनदर इज custom duty, third is federal excise duty, and fourth is value added tax. That is what. First of all, हम सबसे पहले सेल्स टैक्स डिस्कस करेंगे. अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये सिर्फ जो हम जो किसी को सर्विसेज देते हैं या किसी की खिदमत करते हैं या किसी को अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करते हैं, अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें तो
उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। कोई चीज ऐसी जो गुड्स होती हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स लागू होता है, सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड उसके ऊपर सेल्स टैक्स लागू होता है। सेल्स टैक्स रेंजेस अप टू 17%, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, यानी क्या कैटेगरी है उसके हिसाब से 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है। ये एक गवर्नमेंट रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट का जो मालियाती सोर्स है, ये उसकी कुंजी है, उसको हम कुंजी कहते हैं। गवर्नमेंट की मालियाती सोर्स की कुंजी है, कलेक्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन। वो तमाम जो भी हमारे पास सप्लाई चेन्स हैं, जहां जहां पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और वहां से सप्लाईज आ रही हैं, वो सारी की सारी सप्लाई चेन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स, यानी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू रिटेलर्स, जो उनके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे हैं, उस सप्लाई चेन के हिसाब से हम उसको, सम sectors have special rates on exemptions for balance revenue and growth. वे हमारे पास स्पेशल रेट्स हैं रेवेन्यू ग्रोथ को एग्जम्प्ट करने के, यानी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको हम स्पेशल रेट कहते हैं, और एग्जम्पशन ऑफ बैलेंस रेवेन्यू ग्रोथ। बैलेंस रेवेन्यू ग्रोथ में कुछ एग्जम्पशंस ऐसे हैं। कस्टम ड्यूटी, imposed on imports to protect local industries and generate revenue. ये हम बात कर रहे हैं जो हमारी लोकल मकामी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में। और मकामी इंडस्ट्रीज कहते हैं कि हमें चीज को इंपोर्ट करना है। जब वो कहते हैं कि जो इंपोर्ट के ऊपर इंपोज किया गया है कस्टम ड्यूटी, लोकल इंडस्ट्रीज जनरेट रेवेन्यू, वो जो कस्टम ड्यूटी है उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कस्टम ड्यूटी रेट्स वेरी फ्रॉम 0 फॉर एसेंशियल्स टू ओवर 30%, यानी कस्टम ड्यूटी जो जरूरी चीजें हैं उसमें 0 से 30% तक कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है फॉर लग्जरी आइटम्स, 30%, ओवर 30% ऑन लग्जरी आइटम्स एंड 0% फॉर एसेंशियल्स के ऊपर। जो एसेंशियल जरूरी चीजें हैं उसके ऊपर वो 0%। These rates adjust with trade agreements, economic policies. यानी ये हमारे पास जितने एग्रीमेंट्स तिजारत के सिलसिले में बनते हैं, वो एग्रीमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज बेस्ड होते हैं। यानी आपके मालियाती कानून साजी जो होती है, जो कानून बनता है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उसके विद ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसका ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से ये रेट्स वेरी करते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED, levied on production and sale of items like cigarette, luxury goods. This FED, ये जो FED है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये प्रोडक्शन के ऊपर लगाया जाता है और फर्दर ये सेल्स के ऊपर लगाया जाता है, लाइक सिगरेट्स एंड लग्जरी गुड्स। FED aims to raise revenue and discourage certain consumptions. FED जो है वो माली महासिल के लिए FED एम करती है एंड और डिस्करेज करती है, यानी रोकती है सर्टन कंजम्पशंस। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसकी कंजम्पशन को वो रोकती है, लाइक सिगरेट्स। अगर आप सिगरेट के पैकेट्स देख लें तो उसमें लिखा हुआ होता है बट दैट इज ए हेल्थ हैजर्ड। यहाँ पर भी सेम सिलसिला है। FED एम टू रेज रेवेन्यू एंड डिस्करेज सर्टन कंजम्पशंस, जिसको आप सिन टैक्स भी कहते हैं, वो एक अलहदा है, उसमें हमने इसको नहीं डाला इसमें।
Rates vary by product and are regularly updated by the government. जो महासिल है, जो हमारा प्रोडक्ट है, aim to raise revenue and discharge certain consumptions, discourage certain consumption. Rates vary by product and are regularly updated by the government. Value added tax, charged on the added value at each production. ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ये आप चार्ज करते हैं हर प्रोडक्शन के ऊपर, ऑन द एडेड वैल्यू एट ईच प्रोडक्शन. हर प्रोडक्शन के ऊपर आप ये वेट चार्ज करते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ऊपर वेट चार्ज होता है. बट हेल्प्स अवॉइड एस कैस्केडिंग टैक्सेस, while Pakistan mainly use sales tax form. So VAT has been given another name in Pakistan, that is sales tax. यानी सेल्स टैक्स वो चीज, वो नाम है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है वैट की जगह. वो होता है, दोनों चीजों पे चार्ज होता है, प्रोडक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूशन पे. सर्टेन स्टेजेस, वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे ये चार्ज करते हैं. While Pakistan mainly uses sales tax, some sectors or imports follow VAT principles. ये है इस वक्त का जो मेन टॉपिक है जिस पे बात हो रही है, कि जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर वैट प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं. उसके ऊपर डीटीटी, डायरेक्ट टैक्स ट्रीटी है, वो बनती है, क्योंकि वो दूसरे मुल्क से हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं. वहां भी टैक्स कभी चार्ज हो जाता है, यहाँ भी टैक्स चार्ज होता है. तो इस सिलसिले में इन चीजों को वो एग्रीमेंट में लाके अवॉइड करते हैं कि डबल टैक्सेशन का, और उसके लिए वो पूरी वजह करते हैं सिस्टम. वो इंशाअल्लाह ताला जब हम अगला लेक्चर होगा तो उसमें हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जब नुकसान के बारे में है वो यही टॉपिक है, वैल्यू एडेड टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स चैलेंजेस एंड रिफॉर्म. सो फार हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा, उसके चैलेंजेस को पढ़ा, उसके रिफॉर्म्स को पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स. Indirect taxes face issues like evasion, complex rules, and uneven enforcement. यानी इसमें बहुत सिंपल है, वो कहते हैं कि जी evasion, complex rules, and uneven enforcement. पहले तो हम evasion की बात करेंगे. Indirect taxes जो हैं वो हमने पढ़ा है कि ये वो टैक्सेस हैं जो अदर देन डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस की हम तफसील पढ़ी. अब ये डायरेक्ट टैक्सेस जो आ रहे हैं, ये इसके पास हमारे पास जो अकाउंटेबिलिटी है उसको नजर रखते हुए अनइवन एनफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए. यानी उसको जो आप लागू करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, उसकी अनइवन एनफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए. वो कहते हैं टैक्सेस फेस इश्यूज लाइक एवेजन. जो उनके एंड पर जो टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं जिस बेसिस पर, उनके एंड पर अगर इवेजन है, चोरी है, तो उसको पकड़ेंगे हम. कॉम्प्लेक्स रूल्स ऐसे बने हुए हैं जिसको हम रिलैक्स करेंगे या हार्डन करेंगे तो उसकी इन्फोर्समेंट आसान हो जाएगी. करेज करेंगे कि हमारे पास जितना भी टैक्स का काम है वो प्रॉपरली कंट्रोल रहे. अच्छा, नाउ recent reforms focus on digital invoicing, rate rationalization, and better compliance monitoring. Digitization, ये हमारे डिपार्टमेंट में for the last year, 1.5 years, or rather you may say for the last 2 years, we are working on this digitalization. But whole system has been implemented and it has been commissioned.
इट इज फंक्शनल। अच्छा, ये कहते हैं कि रिसेंट रिफॉर्म्स फोकस ऑन डिजिटल इनवॉइसिंग, रेट रैशनलाइजेशन एंड बेटर कंप्लायंस मॉनिटरिंग। कि जब हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं तो पहले जब मैनुअल सिस्टम पे हम काम करते थे तो उस वक्त तमाम इनवॉइसेस हाथ से बनाई जाती थी, रजिस्टर्स होते थे, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्स होते थे और हाथ से वो इनवॉइसिंग करते थे। अब उन्होंने उसको डिजिटलाइज कर दिया। जब डिजिटलाइज किया तो ये सारा डेटाबेस हमारे पास एक्टिवली मौजूद है और इस डेटाबेस के ऊपर हम किसी वक्त भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। और ये डिजिटल रिफॉर्म जो आया है इज वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स। और रेट रैशनलाइजेशन, रैशनल जो आपका है, जो रैशनलाइजेशन है, उसके को रेट कर सकते हैं इसके ऊपर। एंड बेटर कंप्लायंस मॉनिटरिंग, और इसकी जो कंप्लायंस के लिए मॉनिटरिंग हो सकती है उसके लिए बेहतर तरीका इख्तियार कर सकते हैं। Now comes to evasion and fraud risk. This is number one. Indirect tax में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसमें से नंबर वन पॉइंट इज evasion and fraud risk. Evasion कि आप किसी चीज को एवेड करें, आप किसी चीज को जानबूझकर छोड़ दें, फ्रॉड रिस्क। और it turns into a fraudulent situation और fraudulent risk. फ्रॉड रिस्क को अवॉइड करने के लिए फेक इनवॉइसिंग, इनवॉइसेस, अंडर रिपोर्टिंग सेल्स, रिड्यूस रेवेन्यू एंड डिस्टॉर्ट कंपटीशन। कंपटीशन के लिए भी ये हार्मफुल है। फेक इनवॉइसिंग, अंडर रिपोर्टिंग सेल्स, रिड्यूस रेवेन्यू, डिस्टॉर्ट कंपटीशन। दिस टाइम मैं ये जो बात कर रहा हूं ये आप तक उस एक्चुअल जो इसकी माने हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको समझने में आसानी रहे। ताकि लॉ में जब हम इस पर फर्दर आगे जाकर डिस्कशन करेंगे तो यू विल फाइंड मी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, और हम इसी के बारे में बात करेंगे आगे चलकर। नंबर टू, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल रेट्स एंड एग्जाम्पशंस कंफ्यूज टैक्स पेयर्स एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। कॉम्प्लेक्स क्या है कि there is something that can be or that could be understand easily, but due to the complexity one can't understand that. यानी मतलब जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है उसको समझना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि हमने उसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। मल्टीपल रेट्स एंड एग्जाम्पशंस कंफ्यूज टैक्स पेयर्स एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। तो ये जो मल्टीपल रेट्स एंड एग्जाम्पशंस कंफ्यूजिंग हैं और इन बर्डन को बढ़ा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को, महकमाती बर्डन को बढ़ा रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करना है डिजिटल रिफॉर्म्स, थ्रू डिजिटल रिफॉर्म्स। व्हाट आर द डिजिटल रिफॉर्म्स? एज आई हैव बीन डिस्कसिंग, मैं आपसे बात करता रहा हूं इस सिलसिले में। रिफॉर्म्स ये हैं: इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी। डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन इंप्लीमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बेहतरीन है, एक्यूरेसी के लिए भी बेहतरीन है, एंड टैक्स पेयर कन्वीनियंस के लिए भी बेहतर है। अब हम क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए हम काम कर रहे होते हैं
तो उस वक्त हमको इन चीजों की कमी महसूस हो रही थी पहले, जबकि अब ये चीजें मौजूद हैं, अब वो चीजें इंप्रूव हो गई हैं। और we don't have to go to the taxpayer to alarm him that it is not transparent, it is not accurate, and we had never been talking to them for their convenience. Whereas we would have gone to them, would have taken the opinion from them, and again जो हमारे जो कन्वीनियंस है उनके हिसाब से हमको रिफॉर्म्स लेके आते और तब्दीली करते, ताकि उनको टैक्स पेमेंट में भी आसानी हो जाती है और उसको आगे भी बढ़ा देते। कंप्लायंस इनहेंस, और जितनी कंप्लायंस है उसको बढ़ाना है, जितनी कंप्लायंस है उसको आगे बढ़ाना है। अगर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी हैव टू टेक दीज स्टेप्स। Stricter penalties and audit practices aim to widen the tax base and reduce leakages. But what factors are influencing compliance enhancement? Very simple. All the explanations given here. Stricter penalties and audit practices. सख्त जुर्माने और ऑडिट की जो एप्लीकेशन है, उसकी प्रैक्टिस जो है, उसको हम बढ़ा देंगे। एम टू वाइडन द टैक्स बेस एंड रिड्यूस लीकेजेस। अब क्या होता है, कि जिस वक्त हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है और इंडिविजुअल्स भी हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपनीज आ रही, कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी हैं। Aim to widen the tax base and reduce leakages. Another very important factor is leakages. Whatever has been lost in this country, it's my opinion, I have a very simple opinion, not a very big man, लेकिन मेरा सिर्फ आइडिया ये है कि लीकेजेस की वजह से आपका डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा कमजोर हो। Therefore, we must control leakages too. Compliance enhancement. लीकेजेस को कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, उसको कम करना है लीकेजेस को, जो भी हमारे इख्तियार में है, क्योंकि हर आदमी इख्तियार में हर चीज नहीं होती। एक कॉर्पोरेशन कोई रन कर रहा है, उसका इख्तियार लिमिटेड होता है, उसके पास एक खास कलम होता है, एक खास दवात होती है जिससे वो लिखता है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको रिड्यूस करना है, इसलिए रिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सिरे से खत्म नहीं किया जा सकता, बट वी हैव टू work it on gradual basis to bring the departments up to the people working that. Tax authorities in Pakistan. Tax authorities are authorities who are given मर्जी से पाकिस्तानी हुकूमत की, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, हमारे ऐवान से, इस तमाम चीजों से गुजर कर हम आते हैं टैक्स अथॉरिटीज के पास। कि टैक्स अथॉरिटीज का क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान। वो ये लिखता है, कहता है द टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान इज गवर्न्ड बाय की अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाजत दे दी है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस टू इंश्योर कंप्लायंस एंड रेवेन्यू जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट। तो क्या क्या चीजें उन्होंने दे दी उनको दी जनाब। एक तो कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, enforcement and tax laws.
ये चारों चीजें क्यों दी गई? टू इंश्योर कंप्लायंस, ताकि इन चारों की मदद से आप कलेक्शन कर सकते। यानी इन चीजों को हासिल करने के लिए चार डिपार्टमेंट उनके हाथ में रखती है। कलेक्शन हासिल करना, उनसे लेना, एडमिनिस्ट्रेशन उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, महकमाती कंट्रोल, यानी महकमाती कंट्रोल को जो लोग चलाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। उनका अपनी हायरार्की होती है, उनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, उसके हिसाब से वो उसके अंदर चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एंड एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस, और इन चारों डिपार्टमेंट और जो कलेक्ट टैक्स लॉज भी इनके हवाले कर दिया गया है कि आप टैक्स लॉज भी देखें। हमारे मुल्क में जो बार्स हैं उनका काम सिर्फ ये है कि जो फीडबैक उनके पास प्रैक्टिकल लोगों का आता है उसकी बेस पर जो हमारे टैक्स अथॉरिटीज हैं वो ये फैसला करते हैं कि इस वक्त मार्केट ट्रेंड क्या है, इस वक्त फ्लो मार्केट क्या है, इस वक्त जो टैक्स में काम हो रहा है उसमें कौन सी कमी है, उसका प्रॉपर फीडबैक आता है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनसे व्हाट डिफिकल्टीज आर दे फेस। तो उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने ये ऑथराइज कर दिया टैक्स अथॉरिटीज को कि आप पाकिस्तान में इन चार चीजों को अपने पास रखेंगे और रिकवर करेंगे: कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉज। टू इंश्योर कंप्लायंस, इसकी कंप्लायंस पे इनको काम करना है। रेवेन्यू जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट, और रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट। मेन बॉडीज इन्वॉल्व आर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, यानी आपका जो हुकूमत का सबसे बड़ा बोर्ड है वो फेडरल बोर्ड, रेवेन्यू इज योर मालिया। The main body involved are the Federal Board of Revenue, which formulates tax policies and oversees tax collection. Regional tax office that operates the provincial district level to implement these policies and work directly with taxpayers. The main bodies involved are the Federal Board of Revenue, which formulates tax policies, जो कि टैक्स पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं और फॉर्मुलेट करके और इंश्योर करते हैं ओवरसीज टैक्स कलेक्शन। और इसकी फॉर्मुलेशन पॉलिसीज की होती है, ओवरसीज कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन की भी। एंड द रीजनल टैक्स ऑफिस आरटीओ that operates at provincial, they operate at provincial and district level to implement these policies and work directly with taxpayers. आरटीओ का काम ये है that operate at provincial and district level। आरटीओ जो है प्रोविंशियल यानी सूबाई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज। ये पॉलिसीज जो उन्होंने टैक्स में से जो रीजनल टैक्स ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इम्प्लीमेंट these policies work directly with taxpayers। को ऑपरेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनका these authorities work together to maintain both the authority, some RTOs and FBR. Main bodies involved are Board of Revenue, which formulates taxes. These authorities work together to maintain tax discipline
prevent evasion, and facilitate taxpayers through effective service delivery and enforcement mechanisms. These authorities work together to maintain tax discipline, prevent evasion, and facilitate taxpayers through effective service delivery and enforcement mechanisms. After all this, ये जो हमने टैक्स अथॉरिटीज के बारे में बात की, उनकी पावर्स के बारे में बात की, उनके बारे में हमने इलॉबरेट किया, उसको एक्सप्लेन किया, हमने ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बात की, सारी अथॉरिटीज को एक जगह लाके एक नटशेल कंपेंडियम ये है, these authorities work together to maintain tax discipline, prevent evasion. और ये टैक्स डिसिप्लिन उसको मेंटेन करने के लिए काम करेंगी अथॉरिटीज, और प्रिवेंट एवेजन, evasion and facilitate taxpayers through effective service delivery and enforcement mechanism. History of the Central Board of Revenue. Founded in 1924. FBR जो है, itself was founded in 1924. The Central Board of Revenue was established by the Central Board of Revenue Act during British rule in India. Central Board of Revenue was established at the time the British were governing. And Central Board of Revenue was established by the Central Board of Revenue Act during British rule in India. And it was a British rule when this rule was established in 1924. It was created to oversee the streamlined tax collection and streamlined tax collection in the region. इन्होंने ये जो 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश किया था, उसका मकसद था कि स्ट्रीमलाइन किया जाए कलेक्शन इन द रीजन, ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. के सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश कि इसको हम बुनियादी काम को करने के लिए मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे. एवोल्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस, क्या बढ़ाव, किस तरह से इसको बढ़ाव, इसका बढ़ाव हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, यानी आज़ादी के बाद इसको कैसे बढ़ाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किस तरह से बढ़ाया गया. आफ्टर पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस in 1947, जब पाकिस्तान आजाद हो गया, the Central Board of Revenue continued to develop in 1960. Central Board of Revenue को डेवलप किया गया 1960. The Federal Board of Revenue was formed to centralize tax administration. फेडरल ने इस एस्टेब्लिशमेंट के बाद 1960 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश किया गया टू सेंट्रलाइज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. यानी फेडरल ने इसको टेकअप कर लिया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जगह पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको सेंट्रलाइज करने का काम करेगी. Therefore, उन्होंने इसको सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया. The Federal Board of Revenue was formed to centralize tax administration. Later in 1974, FBR was streamlined to improve efficiency and enforcement. My intention is to, मेरा ये इरादा है कि इस तमाम जितनी भी मालूमात है टैक्स के बारे में, इस पर लेक्चर दे रहे हैं,
इस लेक्चर को हम एनहेंस कर दें, ब्रॉडन कर दें इसका आपके विजन के हिसाब से, सो दैट आप इसको आराम से समझ सकें कि इनफैक्ट बेसिक्स क्या है और एडवांस लेवल क्या है। हमारा जॉब ये है कि हम आपको इससे पूरी तरह से फेमिलियर कर दें सिस्टम से। इसलिए मैं इसको उर्दू में भी पढ़ूंगा, लेकिन अगर कभी अंग्रेजी बोलूं तो उसको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ। The Federal Board of Revenue was formed to centralize tax administration. Tax administration को centralize करने के लिए उन्होंने Federal Board of Revenue बनाया गया। उस Federal Board Revenue ने काम शुरू कर दिया इसका। Later in 1974, Federal Board of Revenue (FBR) was streamlined to improve efficiency and enforcement. अब जब उसमें कमी आने लगी उसकी एफिशिएंसी में और लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि वो रिकवरी का रेशो नहीं है, तो उन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इसकी इन्फोर्समेंट की। वॉज स्ट्रीमलाइन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इन्फोर्समेंट, यानी उसको स्ट्रीमलाइन किया गया। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू वॉज स्ट्रीमलाइन टू इम्प्रूव उसको बढ़ाने के लिए, उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए, and enforcement becoming the key federal agency responsible for tax collection and policy implementation. Revenue Division creation. In 1944, the Revenue Division was established within the Ministry of Finance. A Revenue Division was formed, एक Revenue Division बनाया गया Ministry of Finance में, बल्कि establish किया गया within the Ministry of Finance, establish किया गया यानी बनाया गया। इसके लिए बेहतर लफ्ज ये है कि उसको बनाने में उसको लुक आफ्टर भी किया और उसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करके एस्टेब्लिश कर दिया विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, which enhanced coordination and policy formulation for revenue collection. Policy formation यानी कानून बनाने, वो कानून को फॉर्मलाइज करने में, कानून को फॉर्मुलेट करने में, और रेवेन्यू कलेक्शन को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। This division played a crucial role in managing tax operations across provinces. Now we come to the provinces. This division, which was formed, crucial role, बहुत अहम किरदार अदा किया in managing tax operations across provinces. So the division played a crucial role in operations across provinces. Further developments. Over the years, सालों पे मुहित, the Central Board underwent several reforms to modernize tax administration. ये बात सालों पर मुहित है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारी तब्दीलियां लाई, बहुत सारी नई तब्दीलियां शामिल की, बहुत सारी सिस्टमेटिक तब्दीलियां शामिल की टू मॉडर्नाइज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टू एडमिनिस्टर टैक्स ऑन द मॉडर्न बेसिस। इंक्लूडिंग ऑटोमेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। उन्होंने साथ साथ ऑटोमेशन पे भी काम किया और रिस्ट्रक्चरिंग पे भी काम किया। तो रिस्ट्रक्चर भी हो गया, ऑटोमेशन भी। These changes have enhanced transparency. जब रिस्ट्रक्चरिंग और ऑटोमेशन हो गया, जिस तरह से अब हम लोग डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास इतना डेटाबेस जमा हो जाता है कि हम इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज राइटिंग। रिड्यूस टैक्स एवेज के लिए जरूरी है कि आपने these changes had enhanced transparency, यानी क्विक रेस्पॉन्स की वजह से जो हुआ ऑटोमेशन और रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से,
रिड्यूस टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी को रोकने के लिए, इम्प्रूव टैक्स सर्विसेज और टैक्स की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में को इम्प्रूव करने के लिए ये काम किया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओवरव्यू। FBR role, प्राइमरी इनकम टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है बुनियादी इनकम टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान। Chairman appointed by federal government. Chairman is supposed to report to the federal government right away from all the provinces. Yeah, but the chairman in corporate sector used to sit in their provinces, and यहाँ पर खैर, this is away from the topic, appointed by the federal government. Key authorities: Central Board of Revenue is the key. Regional Commissioner of Income Tax is the key authority. There are two. Now we will talk about the importance of Federal Board of Revenue departments. There are so many departments run under the control of Federal Board itself. यानी important Federal Board departments, वो department जो अहम है Federal Board of Revenue के अंदर में चलते हैं. Number one is Commissioner of Income Tax, CIT, responsible for the assessment, collection, recovery of various taxes under the income tax law of Pakistan. Commissioner of Income Tax ensures accurate tax filing by taxpayers and take actions to resolve dispute and enforce compliance. Okay. All right. I think we have, I shall complete this page, this sheet, and we have completed 1 hour of time, and I think it will be continued in the next lecture, but we have a lot to talk about. So I don't think we will be having, but we'll spare some time for that. And if my listeners are ready, I can spare more time for that. For that you have to inform me. मुझे बताइएगा आप, तो फिर मैं उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर दूँ. सर हम रेडी हैं. जी सर क्या हम कह रहे हैं? रेडी. जी सर हम रेडी हैं, अच्छा, हमारे पास टाइम है. अच्छा, Yes, sir, we ठीक are है, ready. अच्छा, सही है, सही. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ. रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट. Commissioner Income Tax is responsible for the assessment, collection and recovery of various taxes under the income tax laws of Pakistan. K, responsible for assessment, collection and recovery of various taxes under the income tax laws of Pakistan. Commissioner Income Tax का काम ये है, और वो जिम्मेदार है इस चीज का कि वो असेसमेंट करे, कलेक्शन करे एंड रिकवर करे various taxes under the income tax laws of Pakistan. This is the utmost duty and responsibility of CIT, that is Commissioner of Income Tax. CIT ensures accurate tax filing by taxpayers and take action to resolve dispute and enforce compliance. जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसका काम यह है कि वो इंश्योर करेगा. इंश्योर का लफ्ज इस तरह से सोचा जाता है, उसका काम है इंश्योर करना कि एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग होनी चाहिए by taxpayers and take action to resolve disputes and enforce compliance. कि सही रिटर्न फाइल होनी चाहिए और टेक एक्शन, और उसको एक्शन लेना है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्स कंप्लायंस. यानी इसका काम यह है कि वो कंप्लायंस को एनफोर्स करे. दिस डिपार्टमेंट प्लेस ए critical role in maximizing government revenue through effective tax administration and enforce measures. ये डिपार्टमेंट एक अहम किरदार अदा करता है
गवर्नमेंट रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमम लिमिट पे ले जाने के लिए थ्रू इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट मेजर्स, और उसको लागू करने के मेजर्स भी लेने हैं. इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, conduct thorough audit and inspection of individuals. Audit in the sense that whenever any individual brings his income tax return for filing, that should be. Thank you very much. Inshallah, we will be meeting next lecture. And thank you very much. And we'll continue, inshallah ta'ala, on the next topic, as well as we will continue talking on this lecture too. We'll take both the lectures at one place, and whatever time that we'll be having in future, that will help us to complete the leftover of the last lecture. Thank you very much, and Allah Hafiz.